Good morning, dear students. So, your Sanila ma'am is back. So, in today's class, we are going to continue with the same lesson, that is lesson 6. Lesson 6 is about Bob and his family. So, we have completed the first part of the lesson, that is, now we are going to do the second half. Okay. And in first part, we also have completed the warm-up exercise. So, I hope you all have completed it very well. So now we are going to revise it once more, what we have read in previous class, and then we'll read the second half. Okay, I will explain you everything very well. Please focus on the pronunciation, and when I am reading, keep your finger and look into your book, everyone, carefully, and try to understand the meanings also. And then in next class, I'll be teaching you the hard words, that is new difficult words of the lesson. Okay, before that, what you have to do is take out your book, open page number 43, and just get ready for the lesson. Okay, I want you all to be focused, and at least the coming 10 minutes, no, just do not look anywhere, just focus on the video, because it will be very important for you. Because nowadays I'm seeing that some children are reading very well, they are doing the practice, and they are reading well in the online classes also, but some are completely out of focus, they are not even able to read he, his, has, and this is creating a lot of problem, like, so someday you will come to school, no, then that day when the teachers will ask you, if suppose you are coming to school when you will be in third class, after 1 or 2 years, if you are coming back, and that time the teachers will ask you to read, it will be very shameful when you are in third class and you are not even able to read he, has, his. So this is not a good thing. So we need to practice more, and we need to read the words clearly with proper pronunciation. Also, I have told you to try to find out the meanings also. It will give you more clarification. Okay, so let's get started. Okay, so in first half, what we have read is about Bob and his friends and his family, as general introduction was given. So I will read it once again and then I will explain. Okay, look into your book, everyone, and keep your finger where ma'am is reading. Okay. Bob is a boy. He is 3 years old. Bob एक boy है. He is 3 years old. He is at home. वो घर पर है. His friend Ron has come to his house. They play with toys. उसका friend है Ron. उसके friend का नाम है Ron और वो उसके घर आया है. And they both are playing with toys. खिलौनों के साथ खेल रहे हैं. His mother is baking a cake for him. His father has gone out to work. He works इन अ पेपर मिल. उसकी ममा उसके लिए केक बना रही है और उसके पापा बाहर काम पे गए हुए हैं. एंड वेयर डज ही वर्क्स इन अ पेपर मिल. ओके. Bob loves his mother and father. His grandpa and grandma also live with them. और बॉब अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करता है, जस्ट लाइक यू, है ना. आपको भी अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार है, वैसे ही वो भी अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करता है. और उसकी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा, दैट इज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ऑल्सो लिव विद देम. वो भी उनके साथ ही रहते हैं. ठीक है. सो दे आर अ फैमिली ऑफ 5. Then on next page, page number 44, take out page number 44, turn the page, everyone, take out this page. Very good. Bob loves his grandma. She tells him a story every day. Bob अपनी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करता था और उसकी ग्रैंडमा क्या करती थी, एवरी डे उसे छोटी छोटी एक एक स्टोरी सुनाती थी. ठीक है. His grandpa brings sweets and toys for him. और उसके दादाजी जो थे उसके लिए रोज स्वीट्स और टॉयज वगैरह लाते थे. ठीक है. One day Bob's grandma and grandpa go to the market. एक दिन बॉब के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा मार्केट गए. His mother says, Bob, grandpa and grandma will be here soon. Put your toys away. Bob says, all right, mummy. Ron goes home. तो एक दिन की बात है जब उसके दादा दादी मार्केट गए थे, तो बॉब की मम्मा ने कहा, बॉब, दादा दादी कभी भी आते ही होंगे मार्केट से, तो तुम अपने खिलौने सारे जमा के रख दो. ठीक है. सो सडनली ही सेड, ऑल राइट मम्मी, ठीक है मम्मा, मैं ऐसा कर देता हूँ. और उसका रॉन जो उसका फ्रेंड था वो तो खेलने आया था, तो उन लोग का खेल हो गया, तो ही वेंट बैक टू हिज होम. वो अपने घर चला गया. ठीक है. Then come to the next page, page number 45. So now second half we are going to read. ये क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से सुनना है. Clear? Look into your book, everyone. Bob does not keep his toys away.
He goes to watch the TV. उसने मम्मा से तो कहा ठीक है मम्मा मैं रख देता हूँ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उसने अपने टॉयज वापस नहीं रखे जगह पे, उल्टा वो क्या करने चला गया? He went to watch TV. वो टीवी देखने चला गया। Grandpa and grandma come home. Grandpa और grandma घर आ गए। Bob says hello grandma and grandpa. They hug him. वो जैसी मार्केट से आए उसने कहा हेलो दादाजी, हेलो दादी, और उन दोनों ने बॉब को हक किया। बॉब सेज कम एंड प्ले विथ मी ग्रैंडपा। दे गो टू हिज रूम। बॉब ने कहा आप चलो मेरे साथ मेरे रूम में खेलना बोल करके वो अपने दादा को लेके अपने रूम में चला गया। The toys are lying all around in the room. Grandpa by mistake puts his foot on a toy car and he slips. बॉब ने अपने टॉयज नहीं उठा के रखे थे, वो पूरे फ्लोर पे पड़े हुए थे। अराउंड मीन्स चारों तरफ, लाइंग मीन्स नीचे पड़े रहना, ठीक है, या फिर कहीं भी लेटा हुआ या पड़ा हुआ, है ना। सो लाइक यू आर लाइंग ऑन द बेड, तो आप बेड पे लेटे हो। टॉयज आर लाइंग ऑन द फ्लोर, टॉयज फ्लोर पे पड़े हैं, है ना। सो टॉयज लाइंग ऑल अराउंड मतलब टॉयज नीचे चारों तरफ कमरे में फैले हुए थे। और बाय मिस्टेक ग्रैंडपा पुट्स हिज फूट ऑन अ टॉय कार, और गलती से उसके जो दादाजी थे उन्होंने टॉय कार पे पैर रख दिया। एंड देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? बॉब सेज ओ नो ग्रैंडपा इज फॉलिंग। उसने कहा अरे ग्रैंडपा तो गिर रहे हैं या फिर गिर गए, ठीक है। हिज मदर कम्स एंड सेज व्हाई डिडंट यू पुट योर टॉयज अवे। और उसकी मम्मा उतने में अचानक से आई और उन्होंने कहा तुमने अपने टॉयज उठा के क्यों नहीं रखे? देखो यहाँ पे दादाजी को गिरता हुआ दिखाया है, राइट। बॉब इज सैड, ही सेज आई एम सॉरी ग्रैंडपा। और बॉब बहुत अपसेट हो गया, एकदम उदास हो गया, और उसने कहा आई एम सॉरी ग्रैंडपा, मुझे माफ कर दो दादाजी। ग्रैंडपा स्माइल्स एंड सेज इट्स ऑल राइट, नेक्स्ट टाइम पुट योर टॉयज इन द राइट प्लेस। और ग्रैंडपा ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, लेकिन अगली बार से तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हें अपने टॉयज ऐसे नहीं रखने हैं, जब खेल के हो जाए तो उन्हें अरेंज करके रखना है। और अगर आप खेल भी रहे हो तो एक तरफ बैठकर खेलो ताकि पूरे रूम में ना फैले आपके टॉयज। और हो सकता है कि आप जिस रूम में बैठ के खेल रहे हो उस रूम में कभी कोई आ जाए तो गलती से उनका पैर पड़ जाए किसी टॉय पे, राइट। सो इसीलिए हमेशा थोड़ा ऑर्गेनाइज रखना जरूरी है हर चीज। ओके, सो दिस वॉज द लेसन एंड व्हाट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी वॉज आपको सबसे पहली चीज तो ये कि आपके बड़े कभी भी आपसे कुछ कहते हैं तो आपको उसे अनसुना नहीं करना है, आपको उसे फॉलो करना है, ठीक है। आपके बड़े आपसे जो भी कहते हैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए कहते हैं। सो जैसे कि बॉब को उसकी मम्मा ने कहा कि आप अपने टॉयज उठा के रखो संभाल के या फिर फैला के मत रखो, जो भी उसकी मम्मा ने कहा उसने पहले तो हाँ कर दिया, लेकिन सिंपली ही मेड इट लाइक ओके फाइन आई एम गोइंग टू वॉच द टीवी। उसने अनसुना करके वो टीवी देखने चला गया। And again then when his grandpa came back, he went back to his room to play with his grandpa. But क्या उसे ये नहीं पता था कि उसके रूम में पूरा सामान फैला हुआ है? उसे पता था लेकिन उसने उसे रखा नहीं, है ना। सो ये कुछ केयरलेसनेस होती है जो अभी से आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी से केयरफुली काम लोगे तो बड़े होने पे आप एक जिम्मेदार पर्सन बनोगे, राइट। और ये जिम्मेदारी हमें हर जगह दिखानी होती है। हो सकता है आपको देख के आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपसे जो छोटे भाई बहन हैं, वो आपको देख के सीख रहे हो, है ना। तो इसीलिए हम उनके लिए जब एक मार्गदर्शक बनते हैं, है ना, उनके लिए गाइड बनते हैं हम। बेसिकली हमारे छोटे भाई बहन के लिए हम एक सीख होते हैं, वो हमें देख के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अगर हम अच्छा करेंगे तो वो भी अच्छा करेंगे, ठीक है। सो इसीलिए इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, टू बी ऑर्गेनाइज्ड, है ना। आपको हमेशा ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, चीज़ों को ऐसे यहाँ वहाँ फैला के नहीं रखना चाहिए। और स्पेशली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज whenever an elder is telling you something, you should be careful and you should listen to them. Also you should obey. सिर्फ सुनना नहीं है, मानना भी है उनकी बातों को, ठीक है। Yes. So this was the moral of the story. Now what is remaining? The reading, right? अब आप लोग का काम क्या है? रीडिंग करना. So what you have to do is read the lesson, understand the words, pronounce it well, and then practice it at least for 2 to 3 times. और जो वर्ड्स बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उसको लिख लिख के याद करो, मीनिंग्स भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो।
कल मैम आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड डेफिनेटली लिखाएगी, उसकी मीनिंग भी बताएगी, लेकिन खुद से भी तो आप थोड़ा एफर्ट डाल सकते हो सकता है उससे आपको कुछ नया सीखने मिल जाए, है ना? सो डू प्रैक्टिस, डू द रीडिंग. ओके, गुड डे एवरीवन.